The videos of experiment number 11 has been uploaded on YouTube. We can first look at that. This experiment is basically similar to experiment number 9 and 10 with the addition of the material. Okay, let's have a look at it. Assalamualaikum. Today we have to look at experiment number 10, experiment number 11, and that is basically the extension of experiment number 10 we have done in the previous week. And today, last time we have calculated the coefficient of friction disk of composite material. Today we have different types of friction disks, and we have to basically find out okay, what happens actually, uh, what is the effect on transmitted torque if we change the material of the friction disk. Today we have different types of friction disk. The one is of nylon, this one is of cord sheet, and the third one that has been placed here is of leather. You can see here. All these three friction disks are of same dimensions, the same inner and outer radius as the previous one we have tested in the last lab. And what we have to do, I have to again perform the experiment. I have to check it that how much torque is required for what is the maximum transmittable torque if I have if I replace the composite friction disk with the leather one. Okay, so this one has been mounted here. So again, what I'll have to do, I'll apply the load on these two hangers, equal loads, producing torque, and I'll calculate the torque, the maximum torque before the slippage occurs. For this one, Okay, you guys, basically, this one is the same experiment as the previous one, but now we have to change the material of the friction disk here. We have tested three other materials, and the data of which is available in your class material section. The main the main teams that is for all four sections. You can go there and find out the data of experiment number 11. Okay, this one was part A. For the part B, Assalamualaikum. just give me a second, please. Okay, this one is part 2. With a gain of 5 Newton. Okay, this one is not moving. Yeah, increase the load. 1 Newton, 1 Newton on both sides. So 6 Newton here, 6 Newton here, plus 30 grams of hanger. So now it starts moving. You can look at it close. Okay, it's moving. It starts moving. Okay, so I can slightly increase the load to make it further. 0.2 Newton here and the 0.2 Newton here. Okay, now it's more visible. You can check now. The rotary plate is moving. Okay, so I'll again do the same thing. I'll increase the load on it, okay, and again I'll notice the torque. The same I'll do with the other materials. इसके ऊपर 5 न्यूटन का लोड अप्लाई करूँगा, then 10 न्यूटन and then 15 and then 20 न्यूटन, and then I'll again note these values. So I have to do all these procedure in the same way as we have done the previously.
The readings are provided in the raw data table. Raw data आपको provide किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद देखना है कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। हर एक सेक्शन की लेदर की, नैलून की और कॉर्ड शीट की जो रीडिंग्स है वो रॉ डेटा टेबल में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 के लिए प्रोवाइडेड है। प्लीज गो थ्रू इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी queries and any question in the interactive session. Thank you. Okay, this one is basically experiment number 11 we have gone through, and for that I can just quickly review what we had done previously. Okay, one thing you have to notice that there is no need to make a totally separate lab report for this one. For experiment number 9 and 10, you can add this section. You can just add a section of this one into your last last two experiments. Just make a single report for all these three experiments because that's the same. Okay, so we had done this experiment, experiment number 9 and 10, and this one is PPT for that. Okay, all of you have done to these experiment number 9 and 10, and the objective of the experiment was to investigate the behavior of the flat clutch plate and to determine the coefficient of friction. But in this one, we have to determine the torque actually if we replace the existing material with the other ones. So I had tested with the three different materials. The data I'll show you in a while. Okay, so what you have to do, you have to analyze these three materials with uniform pressure theory. Okay, not the using uniform rate of wear theory. So you have to do with uniform pressure theory because that's the theory we can use if our clutch plate is new or the material is new. So all three, because they are freshly used, so that's why we can use the uniform pressure theory. Again, you have to find out the transmitted torque. The transmitted torque using these hangers, F hangers, because that's a load in each hanger, in a single hanger. So to find out the torque, you have to actually multiply this hanger force by adding the weight of the hanger with the diameter of the rotary blade. So you will get the torque, the transmitted torque there. And for the raw data part, I can go here. You can check. This one is Lab 11, effect of material on friction disk. You can go there. Just have a look at it. I have specified all the data for all four materials. The first one is of composite material. This data is from the last experiment. And for the leather plate, you can see here on 0 Newton, that's 5. On 5 Newton, that's 6 Newton weight in each hanger, 6 Newton, 6.7 Newton. And for the core sheet, it starts from 0. And for the Naloon sheet, it's 2.2. That's the minimum. Okay, you can check all this data. Okay, anyone who is there who can tell me like, okay, which disk can transmit the most torque? The highest torque is transmitted in which case? Composite? This one is of composite material, 2.45. And this one is of leather. You can check here. This one is of cork sheet. And this one is of nylon sheet. Anyone else? Sir, cork sheet. Okay, this one is cork and leather. You can check सर here. लेदर नहीं होगा? Yes, it will be of leather. You can see here the load applied is in hanger with no load on the rotary plate. That's 5 Newton.
and in this case that's 4 Newton. So it means the maximum resistance is offered by the leather sheet, 5 Newton. And for the car sheet, it's on the second number, that's 4 Newton. And for nylon, it's 2.2. And for that composite material, there's 2.45. So any of you who can answer, why don't we use leather sheet? We use a composite material there. Does it wear quickly? Yeah, yes. Actually, the rate of wear of leather is too high. So you would have to replace for every week or bi-weekly. So that's why we can't use leather. And for the car sheet, that's a similar, because the cork is कॉर्क का जो रेट ऑफ वेयर है वो तो लेदर से भी ज़्यादा है, तो इसलिए कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ और उसके अलावा जो मटेरियल की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर करते हुए वी यूज़ अ कंपोजिट मटेरियल. Okay, so I hope you get it. Anyone who is still like क्या हो रहा है? सर इसमें न्यू 1 और न्यू 2 दो भी लिखे हुए हैं. ये हमने वो हाँ, that's uniform sorry. pressure. हाँ, आपने एक से there is no need for the second one. Note that one, sorry. Just go for the one. क्योंकि जो आपके पास यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो आप न्यूली जो क्लच प्लेट है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो यूज़ होती जाती है उसका जो रेट ऑफ वेयर होता है वो ज़्यादा होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होता है, तो लेकिन प्रेशर तो फिर उसके लिए हम यूनिफॉर्म रेट ऑफ वेयर थ्योरी यूज़ करते हैं. सर जी सर, जो हमने कैलकुलेशन करनी है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए करनी है. जी जी यूनिफॉर्म प्रेशर, क्योंकि हमारी जितनी भी डिस्क हैं लैब में वो सारी की सारी न्यू हैं, तो इसलिए आपने सिर्फ एक थ्योरी के साथ करने हैं और इसी को उसी रिपोर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 9, 10 के बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 11 उसी रिपोर्ट के साथ अटैच करते हैं. यू हैव टू मेक अ सिंगल रिपोर्ट. थैंक यू सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जी ahad ali, are you there? यस सर. अच्छा, आपको समझ आई है इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है? कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन? सर एक्सपेरिमेंट 11 में जी जी सर इसमें हमने एक्सपेरिमेंट 9, 10 में हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहे थे. फ्रिक्शन प्लेट का सिर्फ एक ही मटेरियल था. इसमें बस हमने मटेरियल्स चेंज कर दिए और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहे हैं. प्रोसीजर सारा वही है. हमने कह लें वेट अप्लाई करना है, हमने कपल की टॉर्क मेजर करनी है, किस टॉर्क पे मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई हो सकती है कि हमारी क्लच प्लेट है वो मूव ना, यानी कि रोटेट ना हो. वो हमने मैक्सिमम टॉर्क निकाल लेनी है और फिर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी वाले फॉर्मूले से हमने कह लें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लें. राइट, बिल्कुल. ओके, एनीवन एल्स हु डजंट गेट इट? ओके, आई होप ऑल क्लियर, आप सबको क्लियर है. अच्छा, उसके बाद साथ ही मैं असाइनमेंट डिस्कस करता हूँ. आपको असाइनमेंट 1 जो है आई थिंक वो शो हो गई है. 15 डेज का टाइम है आपके पास, आप एज पर कन्वीनियंट कर लीजिएगा. इसमें जस्ट आपने क्या करना है, बेसिक एक्सरसाइज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ओके, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, नहीं सर, स्क्रीन पे अभी तक वही आ रही. Raw data. अच्छा, ओके, कैन यू नाउ सी? Can you see it now? Yes sir. Yes, sir. Okay, ME11 Engineering Mechanics Lab, that's an assignment of 20 marks. Okay, there will be one other assignment, that's a simple one.
In this one, you have provided with some data in the form of table, pressure and volume. That's actually the Boyle's law, and you have to draw the graph between pressure and volume. Okay, there are 2 marks for this one. लेकिन इसमें जो आपने ख्याल करना है बेसिक, और फिर इसके बाद इसको एक्सिस को रिप्लेस करना है वाई एक्सिस, और फिर इस पे एक्स एक्सिस पे 1/v का ग्राफ ड्रॉ करना है। बेसिकली इस एक्सरसाइज को करवाने का मकसद ये है कि पहले तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए एक्सेल पे। अच्छा, डोंट गो फॉर ऑटोमेटिक जनरेशन, लाइक अगर आप एक्सेल पे जाएं और आप ये 2 कॉलम सेलेक्ट करें और उसके बाद ऑटो पे जाएं तो वो आपको ऑटोमेटिकली ग्राफ ड्रॉ कर देता है। लेकिन बाज़ का वो डेटा सही डिस्प्ले नहीं करता। तो आई डोंट वांट यू टू गो फॉर द ऑटोमेटिक कि आप ग्राफ को ऑटोमेटिक जनरेट करें, बल्कि आप ग्राफ सेलेक्ट करें, उसके बाद वहाँ से उसकी डेटा सिलेक्शन के पॉइंट में जाके आप जो है ना अपना डेटा सिलेक्ट करें जिसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है। और इसमें आपके पास आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सिस किस तरह स्विच होते हैं। बेसिकली अगर इसको मैंने यहाँ प्लॉट करना है एक्स एक्सिस को और इसको मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट करना हो, क्योंकि जब आप एक्सेल को इस तरह 2 कॉलम्स में डेटा देते हैं ना, तो वो हमेशा जो फर्स्ट वन होता है आई थिंक उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देता है और जो सेकंड वन होता है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देता है। अगर आपने इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना, वो ऑटोमेटिक ग्राफ जनरेट नहीं करता अनलेस और अनटिल आप उसके जाके एक्सिस स्विच ना करें। तो आपको वो एक्सिस स्विच करने आने चाहिए कि आप अपनी मर्जी से डेटा किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। पहली तो बात ये होनी चाहिए, ठीक है। द सिमिलर वन, आपके पास ये दूसरा डेटा दिया गया है, ये भी आपने प्लॉट करना है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फर्स्ट में इन्वर्स रिलेशन है और दूसरे में जो है आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो 2 ग्राफ इसमें है और 3 ग्राफ इसमें है। और इसमें जो दूसरा पार्ट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक ही ग्राफ पे मल्टीपल लाइंस किस तरह प्लॉट करते हैं एक्चुअली। तो वो पता होनी चाहिए और उनको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, मतलब सीरीज 1 सीरीज 2 उसका नाम लिखा होना चाहिए। और ग्राफ अपनी जितने भी प्लॉट करने हैं, मेक श्योर उसमें आप तो एक तो प्रॉपर टाइटल हो, ठीक है, एक्सिस लेबल्ड हो विद यूनिट्स। यूनिट्स जरूर मेंशन करने हैं। आपका जो एक्सिस पे जो प्रेशर है, यूजुअली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, लाइक दे ड्रॉ द ग्राफ बट दे डोंट पुट द प्रॉपर टाइटल ऑन इट। कि ग्राफ जो है जहां पे भी आपने यूज करना है, हमेशा उसके नीचे उसका कैप्शन के मतलब व्हाट इज दिस ग्राफ इज बेसिकली एक्चुअली फॉर, और या उसका टाइटल होता है। और यूनिट जरूर मेंशन करने हैं क्योंकि यूनिट्स के मार्क्स हैं। यूनिट्स नहीं भूलने आपने कभी भी थ्रू आउट ईयर इंजीनियरिंग करिकुलम। और उसके बाद अगर आपको लेबल पॉइंट्स कर सकते हैं, आपने पॉइंट्स लेबल करने हैं, और उसके बाद बेस्ट फिट कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पहले तो आपने एक्सेल में करना है, ठीक है, दैट्स अ वन टूल। लेकिन दूसरा इसका जो पार्ट बी है, 10 मार्क्स फॉर दिस एंड 10 मार्क्स फॉर दिस, इसमें आपने क्या करना है, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, ये कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों, वो यूज़ करके आपने सेम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन उसके जो ग्राफ के स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने मीट करने हैं, मतलब आपका प्रॉपर टाइटल एक्सेस लेबल्ड होनी चाहिए। बेशक पॉइंट शो हो ना हो, लेकिन ये 2 चीज़ें मस्ट हैं, टाइटल और एक्सेस, 2 चीज़ें ज़रूर शो होनी चाहिए उस पर। और उसके बाद जब आपने फाइल सबमिट करनी है, तो उसमें आपको जनरल सेक्शन में जो हमारी इनिशियल टीम थी उसके अंदर मैंने टेम्परेरी रोल नंबर असाइन किए एक्चुअली। इससे स्टूडेंट को ढूंढने में ज़रा आसानी हो जाती है, मार्क्स पुटअप करने में आसानी हो जाती है। तो वहाँ पे आपके मतलब 1 to 36 हर सेक्शन में जो है ना 36 या 38 तक जो है ना टेम्परेरी रोल नंबर साइन किए गए हैं। तो आपने जब फाइल सबमिट करनी है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, उस फाइल को सपोज आप सेक्शन सी है और आपका 23 नंबर है, तो आपने उसको C-23 फाइल को नेम दे देना है, जस्ट C-23, ताकि मुझे पता चल जाए तो मैं सेक्शन सी में जाके 23 नंबर पे देखूं तो मैं वहां पे मार्क्स इजीली पुट अप कर दूं, तो वो मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा ये आपने, हाँ, मेक श्योर आपने एक ही फाइल बनानी है, ठीक है, जिसमें सारे ग्राफ हो। सबसे पहले वो वर्ड या PDF की फाइल आपने बना लेनी है, मतलब जितने भी आपके ग्राफ हैं वो सारे वहीं पे आपने पुटअप कर दिए, यानी ये एक आपके पास फाइल होगी जो आपने सबमिट की है। अब इसके साथ आपकी 1 या 2 सोर्स फाइल हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपने ग्राफ एक्सेल पे बनाए हैं या आपने ऑनलाइन किसी टूल पे बनाए हैं,
अगर ऑनलाइन पे बनाए हैं और उसका मतलब डाउनलोड नहीं होती तो उसको जस्ट स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें वर्ड फाइल में, दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो डाउनलोड हो सकती है या आपने मेडलैब पे बनाई है या किसी और पे बनाई है, उसकी भी अगर आपकी कोई सोर्स फाइल है तो उस सोर्स फाइल की आपने अलग कर देना C-23A और C-23B। ठीक है, ये तीनों फाइल्स जो है ना, आपने एक जिप फोल्डर क्रिएट करके या जिप फाइल क्रिएट करके वो आपने अपलोड कर देनी है। तो एक मेन फाइल होगी यानी जिसमें मुझे पता होगा आपने ग्राफ ड्रॉ किए, मैं जस्ट आई गो टू दैट, और अगर मैंने सोर्स फाइल चेक करनी हुई तो आई कैन गो इजली फॉर दैट। जी ये क्लियर है आप सब लोगों को? यस सर। हाँ, मेक श्योर आप फाइल का नेम एग्जैक्टली C-23 लिखें, आगे नेम भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप अंदर कवर पेज अटैच कर दें। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में चेक करना ज़रा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, फिर उसको ढूंढना सेक्शन में वो डिफरेंट टास्क होता है, तो उसके लिए लास्ट टाइम भी मैंने ये किया था कि सी, अगर आप अपने सेक्शन में आंसर कर जस्ट सी, सेक्शन सी मीन्स जस्ट सी, दैट्स इनफ, तो वो हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट? अच्छा, अगर आपको समझ ना आए कि मतलब एक्सेल पे किस तरह करते हैं तो डू टेक्स्ट मी, ठीक है, मुझे जस्ट चैट में रिप्लाई कर दें तो आई विल गाइड यू कि काम करना है कैसे है। क्योंकि मोस्टली लास्ट टाइम मैंने थर्ड ईयर की असाइनमेंट ली थी, उन्हें ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता था, दे यूज द ऑटोमेटिक एक्सेल की जो ऑटोमेटिक ग्राफ जनरेशन का ऑप्शन है, दे यूज दैट, बट इन सम केसेस दैट डजंट वर्क प्रॉपर्ली, सो यू कैन गो फॉर दैट। ये फाइल्स का दोबारा बता दें जो सबमिट करवानी है। एक एक्सेल फाइल होगी, दूसरी पीडीएफ बना के भेजनी है आपको। हाँ, एक आपने एक्सेल, एक सबसे पहले आपने वर्ड या पीडीएफ फाइल जनरेट की, ठीक है, उसके अंदर आपने सारा, जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसके अंदर सारा कुछ होगा, ठीक है, यानी अगर आपने एक्सेल पे भी ग्राफ बनाया तो उसको आपने वर्ड पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब वो पेस्ट हो गया, अब आपकी सारी एक फाइल आ गई, यानी आपने अपने सारे ग्राफ अटैच कर दिए, ठीक है। अब इसके साथ अब एक्सेल की एक सोर्स फाइल भी होगी जिस पे आपने ग्राफ बनाए हैं, या अगर आपने मैटलैब पे ग्राफ बनाए हैं पार्ट बी में तो आपके वहाँ मैटलैब की फाइल होगी। तो वो जो फाइल है आपने C-23A C-23B करके वो तीनों फाइल्स एक ही फोल्डर में करके उसको जिप फाइल सबमिट करते हैं। तो ये एक्सेल फाइल जरूरी है क्योंकि जो वर्ड फाइल है उसके ऊपर भी तो ग्राफ बन जाता है इंसर्ट कर। नहीं, वर्ड पे तो ग्राफ नहीं बनता आई थिंक। नहीं सर, इंसर्ट के ऑप्शन में जाए ना तो वहाँ पे होता है अच्छा, कि आपने नहीं, बेसिकली बेसिक पर्पज है आपको एक्सेल यूज करना आना चाहिए, तो दैट्स द मोस्ट बेसिक टूल, क्योंकि यूजुअली हम वर्ड यूज नहीं करते ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और एक्सेल में आपको डेटा मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए। तो अगर आप बाय हैंड करेंगे 1 by 1 यानी 1/v करेंगे तो फिर आपको सारा बाय हैंड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्सेल कर लेंगे तो फिर वो इजी हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर जिप फाइल का नेम क्या रखेंगे? हाँ, जिप फाइल C-23 वो सेम रखिएगा। जी, एनीथिंग एल्स? सर वो जो आप कह रहे थे कि एक ग्राफ में दो लाइंस बनानी है जो डिस्टिंग्विश होनी चाहिए, वो क्या था, वो जरा एक दफा बता देंगे दोबारा? जस्ट गिव मी अ सेकंड, अभी बता देता हूँ मैं आपको। ओके, आई थिंक ओके यू कैन सपोज मैं यहाँ पे गया, ठीक है, इंटरेक्शन, ओके, सपोज यहाँ पे मैं गया, क्वांटिटी ए है मेरे पास और बी है, यानी सपोज इसको मैं एक्स कर लेता हूँ, इसको मैंने वाई किया और इसको मैंने जी किया, ठीक है, और इसको मैं कोई रेंडम नेम दे दी मैंने, ठीक है,
और यहाँ पे x की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो उस ग्राफ में क्या है कि सपोज आपने ये x एक्सिस पे ड्रॉ करना है और ये y एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको आपने x एक्सिस पे ड्रॉ किया, इसके साथ आप y का ग्राफ सेपरेट बना सकते हैं x और y, और दूसरा आप ग्राफ बना सकते हैं x और z के दरमियान। दोनों ग्राफ आप सेपरेटली बना सकते हैं, लेकिन उसका क्या मकसद है, जो मैं कह रहा हूँ कि मिक्सअप करना है, मतलब एक ही ग्राफ ड्रॉ करना है कि x एक्सिस पे चूंकि दोनों का x एक्सिस सेम है, तो x एक्सिस दोनों को कॉमन आएगा, यानी कि जो बॉटम है वो आपके पास एक ही एक्सिस ड्रॉ करना है, जबकि इन दोनों को सेम ग्राफ पे ड्रॉ करना है, मतलब एक ही ग्राफ पे ये तीनों आने चाहिए। ये समझ नहीं आया। ओके ओके, लेट मी डू दैट। हाउ टू, सपोज मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ओके। अब ये देखें, ये आपके पास एक रैंडम ग्राफ आ गया, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। सपोज ये एक्स की वैल्यूज हैं जो कि उसने ड्रॉ कर दी है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये y है, सपोज यहाँ पे y है, ठीक है। सपोज ये y है, तो ये x और y के दरमियान ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसी ग्राफ पे मैंने थर्ड प्लॉट करना है, यानी मेरे पास एक दूसरी लाइन है यहाँ पे z की, गॉट इट। यानी दोनों सेम है, ये x और y का ग्राफ है तो z भी इसी के ऊपर है। सर ये नहीं ड्रा हुआ सही। हाँ, आई नो दैट्स नॉट एक्यूरेटली ड्रॉन। इसके लिए I'll go to the selected and move this one, और उसके बाद I'll go to add series name blah blah. And for the next one is I'll go this one. For the one okay. I कट क्यों हो गया? इसको सेव नहीं किया, sorry. Okay, you can see here. यानी ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y की वैल्यू है, ठीक है। तो ये x और y का ग्राफ आ गया, इसी पे आपने z भी ड्रॉ कर देना है, यानी दो लाइन होंगी एक्चुअली। Did you get it now? यस सर। Okay, so basically we have to look at it how to do that. Okay, any other confusion? Okay, I think everything is clear. Now let me mark your attendance, please. Continue schedule. Section C.